Yeah, good morning, everyone. Hello. So, Yes, Leela, we can hear you. Yeah. yeah. So this is the first webinar of Wit and Wonder webinar, which we are planning to do every month for students. And we have here Chandni, who is an assistant professor in applied physics at IISc Bangalore. And she is from Kerala and she has done masters and PhD from IISc and postdoc from Caltech University. And Chandni, welcome. And we have Thank here you. mainly three schools. KK Academy is from Lucknow, and you can see Pradhan Birua. He is running a school, Ayub School in Jharkhand. And one more school is supposed to join. The school is Basundara from Orissa. They have yet not joined. Okay, should we wait for them or? No, you can start. Okay, so in case my internet, like, our institute internet sometimes just conks off. So if that happens, just alert me and I can shift to my mobile data. Yes, So sure. yeah, you can just let me know, because when I start speaking, then I may not know if it's Yes, not sure. working But out. right now it's very clear, Chandni. Okay, all right. Yeah. Okay. Yes. Because for me, it was disconnecting when Leela was speaking a while back. So in case that happens, Okay. just, yeah, Yeah. Okay, And so let me in addition to what Leela has said, a few more students may join from some other schools and NGO partners of us. Yeah. Sure. So, Yeah, okay. Thank you. Please go ahead, Chandni. Okay, sure. I'll just share my screen 1 second. Okay, let me know if you can see it. Yes. Okay, sure. So I was asked to speak in a mix of English and Hindi. My Hindi is not great, but I'll try. Okay. So welcome everyone to this seminar. My name is Chandni and I'm a faculty member. I'm an assistant professor in the Department of Instrumentation and Applied Physics at IISc. So today I'll be talking about what is it like to be a scientist. So the title of this talk is Being a Scientist, Curious Minds at Work. So by the end of this talk, I want you students to understand how is it that a scientist discovers new things, and how can you be a scientist? Okay. So let me see. This is, yeah. So ओके तो आई ट्राई टू मिक्स विथ हिंदी. तो ये जो टॉक है ये नेशनल साइंस डे के ओकेशन पे देने के लिए बोला गया था. तो नेशनल साइंस डे क्या है, इससे हम शुरू करेंगे. So what is National Science Day? It's in the memory of C.V. Raman. So यहाँ पे विकिपीडिया का एक लिंक मैंने यहाँ पे डाला है राइट साइड पे. तो it's celebrated in India on 28th February each year to mark the discovery of Raman effect by Sir C.V. Raman, who won the Nobel Prize in 1930. तो ये जो डिस्कवरी है सीवी रामन, सर सीवी रामन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है टू द एक्सटेंट कि हम लोग हमारे लैब में इसको हमेशा यूज करते हैं. तो ये डिस्कवरी है क्या, तो ये बताती हूँ मैं पहले आपको. तो सोचो कि किसी भी एक सब्सटेंस पे एक लाइट गिर रही है. तो ये जो लाइट गिर रही है इसका कलर अभी येलो दिया गया है. तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो लाइट हम डालते हैं वो सरफेस से हिट करके कहीं और चले जाते हैं. तो ऐसे ऐसे कहीं पे चले गए. तो ये इसका जो कलर है ये नॉर्मली चेंज नहीं होता है. तो अगर आप येलो लाइट डाल रहे हैं तो आपको वापस येलो लाइट ही मिलेगा. अगर आप रेड डाल रहे हैं तो रेड लाइट मिलेगा आपको. पर रामन इफेक्ट का ये इंपॉर्टेंस है कि इसका एक छोटा सा परसेंटेज लाइट, इसका कलर चेंज हो जाता है. येलो से रेड नहीं होता है जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि येलो लाइट आ रहा है और एक रेड लाइट बाहर आ रहा है ना. तो ऐसे नहीं होता है, पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है. तो इसका जो कलर चेंज, एक्चुअली जो कलर चेंज होता है उसका जो डिफरेंस होता है कलर का, वो इस मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर आप एक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसका चेंज कुछ होगा, कुछ और मटेरियल यूज कर रहे हैं तो कुछ और चेंज होगा. तो ये जो चेंज आप डिटेक्ट कर सकते हैं और इससे आपको इस मटेरियल के बारे में कुछ पता चलता है. तो अगर सोचो कि आपने कुछ मटेरियल डिस्कवर किया और आपको पता नहीं है कि ये मटेरियल क्या है, तो आप ये वाला जो इफेक्ट है इसको यूज कर सकते हो. तो इसका बहुत ज्यादा यूज है डेली साइंटिस्ट के लाइफ में. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है और इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है. तो February 28 को है, तो हम उसके मेमोरी में आज ये मतलब ये टॉक ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए. ठीक है. तो साइंटिस्ट क्या होता है, हु इज अ साइंटिस्ट? तो साइंटिस्ट के मेरे हिसाब से ये जो मैंने डाला है ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए. तो फर्स्ट क्वालिटी है कि ही और शी हैज टू बी क्यूरियस. क्यूरियस मतलब आप आपके आसपास
कुछ देखते हैं तो आप सोचते हैं कि क्यों हो रहा है ये साथ ये सब चीजें, या आपको दिलचस्पी है जानने के लिए कि ये कलर चेंज क्यों हो रहा है, या कुछ गर्म, क्या ये चीज गर्म क्यों हो रही है, इस तरह के क्यूरियोसिटी आपके अंदर है। तो जब आप बच्चे होते हैं तो बच्चे तो क्यूरियस होते ही है, सब कुछ जानना चाहते हैं बच्चे, तो बच्चे इनहेरेंटली क्यूरियस है। पर जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और कि आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि क्यों इतने सवाल पूछते हो, तो आपकी क्यूरियोसिटी का जो लेवल है वो कम होते जाते हैं। साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहते हैं, तो उनको हमेशा ये जानना है कि ये चीजें होती क्या है। तो सेकेंड क्वालिटी है कि ऑब्जर्व्स एंड वंडर्स। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आप आसपास की चीजों को देखते हैं और आप खुद से कुछ सवाल पूछते हैं कि, और या सोचते हैं कि यू वंडर कि व्हाई डज दिस हैपन। ओके, और इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस भी पूछते हैं, सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और अपने आप से भी पूछते हैं और आसपास के लोगों से भी पूछते हैं। और आप उसके बाद जब ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं तो आप देखते हो और सुनते हो और एक्सपेरिमेंट भी करते हो, कुछ ट्राई करके चेक करते हैं कि क्या है जो आप सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना। तो एंड देन यू यूज दोस थिंग्स टू बिल्ड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो ये जो क्वालिटी है ये साइंटिस्ट प्लस इंजीनियर्स में आते हैं, टेक्नीशियंस में आते हैं ना। ये तो टेक्निकल चीजें हैं कि आप कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आपने देखा और आप कुछ उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमारे हिसाब से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये सारे क्वालिटीज दोनों में ही होते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ये सारे सवाल का जवाब देते हैं साइंटिस्ट की, what, why and how, what is this and why does this happen and how do things work, right? तो ये 3 सवाल साइंटिस्ट के मन में हमेशा रहते हैं। तो ये let's start from your house, right? क्यूरियोसिटी कैसे आप क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिखा है जो आपके घर से आप पूछ सकते हैं, या आपके जो सराउंडिंग्स है वहां पे आपने कॉमनली देखा होगा, शायद आपको इसका आंसर पता है, नहीं पता होगा, पर क्वेश्चन ये है कि आप सवाल पूछते हैं कि नहीं। सो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या जो भी आपके घर में है कभी कभी प्रेशर कुकर यूज करते हैं, कभी कभी नॉर्मल पैन में खाना बनाते हैं। तो क्यों यूज करते हैं प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर से क्या एडवांटेज मिलती है ना, ये तो एक सवाल है। तो कभी कभी आपको ये सवाल आया होगा, नहीं तो आपने ये नोटिस ही नहीं किया होगा, दोनों ही हो सकता है, और आपने किसी से पूछा होगा, नहीं तो नहीं पूछा होगा। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप ये स्टॉक के बाद जब आप वापस घर चले जाए तो आप अपने घर में ही देख लीजिए कि आपको घर के बारे में कितना पता है। बहुत सारी चीजें आपके घर में ऐसे होगा जो आपने देखा ही होगा पर आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो आपकी मम्मी प्रेशर कुकर कब यूज करती है, जब आप सोचो कि पालक बनानी है तो प्रेशर कुकर नहीं यूज करती है, दाल या चावल बनाने के लिए प्रेशर कुकर यूज करती है। तो क्यों करती है ऐसे, और प्रेशर कुकर करता क्या है कि ये जो कुकिंग का जो प्रोसेस है इसको फास्ट करते हैं, पर कैसे करते हैं। तो ये आपको किसी किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी पता चलेगा किसी फॉर्म में, जब आप और क्लासेस करेंगे और आप साइंस और क्लासेस आप लेंगे अपने स्कूल में, तो ये सवालों का जवाब आपको ग्रेजुअली मिलेगा। आजकल तो मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। पर क्वेश्चन ये है कि आपको सवाल पूछना है पहले। तो और एक सवाल यहाँ पे डाला है कि घर में फ्रिज भी होता है और एसी भी होती है ना। तो ये 2 चीजें क्यों चाहिए, फ्रिज भी तो कूल करती है, एसी भी कूल करती है, तो फ्रिज को खुला छोड़ के हम एक रूम को कूल क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह के सवाल ये इसका जो आंसर है शायद आपको इजीली नहीं मिलेगा, आप गूगल करेंगे तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। पर पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास चीजों को देख लीजिए और सवाल पूछिए। और एक सवाल, और 2 सवाल एक्चुअली, कि बनाना केला जब हम ले आते हैं तो वो कच्चा जब होता है तो इट इज ग्रीन इन कलर, और जब वो पक जाता है वो येलो कलर बन जाता है ना। तो ये येलो कलर क्यों हो जाता है। सेम फॉर मैंगो ऑल्सो। सो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाता है एज इट स्टार्ट्स राइपनिंग। सो व्हाई इज दैट सो। एंड ये आई डोंट नो इफ दिस स्टिल मेक सेंस, पर ये 2 तरह के बल्ब होते हैं। ये पुराने जमाने के बल्ब है जो हमारे घरों में होते थे, शायद अभी भी होगा। तो ये जो बल्ब है ये गर्म हो जाती है, पर ये आजकल के नए जो बल्ब होते हैं ये गर्म ही नहीं होते, है ना। तो इसका टेक्नोलॉजी अलग है।
तो ये क्यों होता है, ये भी तो एक सवाल है कि बल्ब कैसे काम करते हैं, और ये तो लाइट भी देती है पर ये बहुत गर्म हो जाता है, तो क्यों होता है। तो इस तरह के जो घर के आसपास आपको जो भी चीजें दिख रही है, तो यू प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर हाउस एंड देन लुक फॉर आंसर्स। आपको हो सकता है कि आंसर्स अभी नहीं मिलेगी, पर ये जो हैबिट है कि क्वेश्चंस पूछने का, तो ये एक साइंटिस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपको ग्रेजुअली बिल्ड अप करना है। ओके, तो नाउ साइंटिस्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और दूसरी चीज मैंने जो बताई कि साइंटिस्ट आल्सो इम्प्रूव द वर्ल्ड। सो व्हाट इज मीन बाय इम्प्रूव द वर्ल्ड। तो ये पिक्चर में एक फोटो है, आई डोंट नो इफ इट्स दिस सपोज्ड टू बी इंटरैक्टिव, बट if students have access to this, then they can tell me what this is. ये चीज है क्या? No, I don't think this is interactive, right? Okay, so let me only tell the answer then. Okay, so this is the world's first computer. तो इसको देख के तो किसी को भी nobody can guess कि ये कंप्यूटर है, पर this is considered to be the first electronic version of the computer, the proper computer. This is as big as a room, बहुत बड़ी है, और आप देख सकते हैं कि 2 लोग खड़े हैं, और ये इसकी फर्स्ट कंप्यूटर जो है बहुत ही स्लो था और बहुत ही कम चीजें कर सकते थे, पर इट कुड ऑटोमेटिकली कंप्यूट समथिंग, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। तो ऐसा था कंप्यूटर, और पहले जब इन्वेंट किया था किसी ने भी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर कैन ग्रेजुअली चेंज एंड इम्प्रूव द वर्ल्ड, है ना। तो दिस कंप्यूटर हैज बिकम सो स्मॉल नाउ, दिस इज ऑल्सो एन ओल्डर वर्जन ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज अगेन दिस इज अ फर्स्ट लैपटॉप एक्चुअली, ये जो आदमी इसको पकड़ के खड़ा है, this is a portable thing, so this is a first laptop, and this is an old PC, and now you know how these have changed. Laptops have become so small, अभी बहुत तरह के variations भी है। Computers have also become very nice, fancy looking, और ये अभी जो भी कर सकते हैं, ये जो कंप्यूटर जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा ये मोबाइल फोन करते हैं। तो everything has changed and technology has become very fast एंड वेरी एक्सेसिबल, आपके हाथों में एक कंप्यूटर है अभी। तो ये तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की वजह से हुआ है कि आपके लाइफ में एक नया चीज ले आए और उसको इम्प्रूव करते रहे विद टाइम, दे केप्ट इम्प्रूविंग द थिंग दैट दे मेड ऑल्सो। तो इसको इतना छोटा बनाने के लिए बहुत सारा काम इसके पीछे गया है। तो ये एक दूसरी क्वालिटी है। तो then the question is how to get started. आप लोगों के लिए what is important? How do you become a scientist? सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने फाउंडेशन ठीक करना है। जैसे एक घर बनाने के लिए आपको फाउंडेशन ठीक करना होगा, वैसे ही साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन ठीक रहे। तो फाउंडेशन से मेरी क्या मतलब है कि आपके क्लासेस में आपको जो भी पढ़ाई चल रही है वो सब आप अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको, और सही कॉन्सेप्ट्स सही कराना है, और सही बुक्स पढ़ना है, और आपके तरफ से एफर्ट भी सही रहना चाहिए। तो आपको ये फाउंडेशन अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जैसे आप स्कूल में जाके फाउंडेशन इंप्रूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको खुद से भी कुछ एक्सप्लोर करना है। जब आप बच्चे होते हैं तो आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना है, और आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसको सही रखना है। You have to ask all these questions, you have to play with things, and then only you will learn. So there are a lot of things, right? कि आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पैसे की जरूरत नहीं है आपको। आप आसपास में ऐसे ही देख सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला भी नहीं है। तो एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एक बच्ची जो है कि देख रही है कि ये पौधा कैसे बड़ा हो रहा है, तो ये तो एक बड़ी एक्सपेरिमेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद से कर सकते हैं कि डिफरेंट तरह के पौधे होते हैं और उसको कितना पानी देना है या वो कैसे ग्रो करते हैं, वो अलग अलग तरीके से हो जाता है ना। तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हैं अपने घर में, और इसको नोट कर सकते हैं कि इसका हाइट इतना बढ़ गया या मैंने इतनी पानी डाल दी। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो गया जो आप खुद से कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे एक कॉर्नफ्लावर का एक बच्चे खेल रहे इसके साथ। तो ये जो चीज है ये तो आपके घरों में भी होगा। तो ये यहाँ से डाल के देख रही है कि ये कैसे गिर रहा है, इसका विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाता है पानी डालने से। तो आपके आसपास तो पोटेटो से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आपको अगर ये पता नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये तो कुछ वायर डाल के पोटेटो से ये बल्ब जला सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपके घर में जो सामान है उससे आप कर सकते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना है
आपको खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करना है चीजों को और ऑब्जर्व करना है, नोट करना है, ठीक है। और जैसे आपकी ग्रेजुएशन होगी, आप स्कूल से डिग्री लेगी, तो आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या जो भी अवेलेबल सब्जेक्ट्स है। पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो इम्पोर्टेंट है बाकी टू फॉर फर्दर स्टडीज। सो स्कूल से आपको ये सारी फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो यू गेट दिस फाउंडेशन फ्रॉम स्कूल। उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे तो यहाँ से आपको एक बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री मिल सकती है। तो आप एक सब्जेक्ट पिक करते हैं, सोचो कि तो मेरे केस में मैंने फिजिक्स पिक की थी, तो यू पिक अ सब्जेक्ट एंड देन यू लर्न दैट सब्जेक्ट टू अ रीजनेबली लार्ज ब्रॉड एक्सटेंट। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा। तो आपने सोचो कि बायोलॉजी लिया है, तो बायोलॉजी में आप एक पर्टिकुलर छोटा सा फील्ड पे स्पेशलाइज करेंगे और तब आप जाके आप रिसर्च करेंगे। तो जो भी आप स्कूल में करते हैं लैब में या कॉलेज में लैब में करते हैं, तो उससे बहुत डिफरेंट होता है जब आप पीएचडी करते हैं। तो बहुत फोकस करके एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करके उसमें डीप जाते हैं। तो पीएचडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक साइंटिस्ट के लिए जानने के लिए। तो ये जो भी प्रोसेस मैंने अभी बताया, इसको एक ये जो वेबसाइट है इससे मैंने ये पिक्चर ली है, ये बहुत अच्छे से समराइज करते हैं। तो मान लीजिए कि दिस इज अ सर्कल एंड ये ह्यूमन नॉलेज जो है, ह्यूमन साइंटिफिक नॉलेज जो है, उसको ये सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सर्कल एज सच हम जैसे जैसे हमारे नॉलेज को हमारा नॉलेज बढ़ जाता है तो ये सर्कल बड़ा होते जाता है ना। तो सोचो कि 1000 ईयर्स पहले ये सर्कल थोड़ा सा छोटा रहा होगा, उसके बाद साइंस की बहुत एडवांसमेंट हो गई थी, तो उसके हिसाब से ये सर्कल बड़ा हो गया और ये अभी ये सर्कल इस तरह है। तो इस सर्कल में आप जब अभी आपकी जो स्कूल चल रही है तो आपको इतना नॉलेज पता है, आपने इतना सब जान लिया है स्कूल से, यू हैव लर्नड सो मच दिस ब्लू सर्कल। Okay, so you know very little. You have lot of knowledge which is left to cover. You know very little. You have learned maybe chemistry या science या जो भी है, जो भी आपने पढ़ा है, तो that is this blue circle. अब क्या है कि you go to high school, right? High school या 11th 12th में आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगी, तो ये ग्रीन सर्कल जो है ये बड़ा है, तो आपका नॉलेज और थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, उसके बाद आप बैचलर्स डिग्री कॉलेज जाएंगे। तो बैचलर्स डिग्री में क्या होता है, आप सब कुछ पढ़ते हैं और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं ना। तो ये रेड में देखो, एक डायरेक्शन में चला गया। सोचो कि ये फिजिक्स है, तो ये फिजिक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, ये बाकी केमिस्ट्री ये सब तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है ये कभी मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरा ये जो नॉलेज होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो माय स्टडीज विल फोकस ऑन दिस डायरेक्शन व्हिच इज फिजिक्स राइट नाउ। ओके, सो उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री, सो मास्टर्स डिग्री में क्या होगा, और थोड़ा शार्पर हो जाएगा इसका स्पेशलिटी। और उसके बाद आएगी पीएचडी। तो पीएचडी में आप क्या करेंगे, ये जो फील्ड है इसमें एक स्पेशलाइजेशन होगा और आप उस फील्ड का सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे और आपको ये नॉलेज जो है इसके एंड तक आप पहुंच जाएंगे और थोड़ा शार्प हो गया आप, ठीक है। तो आपने इतना स्पेशलाइज कर दिया कि आप ये जो पूरे जो सर्कल है उसका जो फिजिक्स नॉलेज है आपने वो सब कुछ पा लिया और यहाँ पे यू हैव रीच द बाउंड्री ऑफ दिस नॉलेज सर्कल। नाउ व्हाट इज रिसर्च? सो दिस इज बाय रीडिंग द रिसर्च पेपर्स, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस देयर इज नो नॉलेज, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट नॉलेज, व्हिच मीन्स कि आप आपके लैब में काम करके या आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उससे आपको एक दिन आप यहाँ पे जाके फोकस करेंगे इस कोने में जाके। तो मैं अगर इस कोने को फोकस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, उस बाउंड्री के यहाँ तक हम पहुंच गए। नाउ व्हाट यू डू इज यू वर्क हियर, यू ट्राई टू पुश दिस बाउंड्री, यू वर्क हियर वेरी हार्ड फॉर मेनी इयर्स। आप कुछ एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं और यू कीप वर्किंग एंड देन व्हाट हैपेंस इज दिस बाउंड्री विल बिकम एक्सटेंडेड। और आपने क्या किया यहाँ पे, यू हैव फाउंड समथिंग इन द लैब, ठीक है, विच वॉज नॉट नोन बिफोर। सो दिस बाउंड्री के अंदर उसका नॉलेज है नहीं, तो वो नॉलेज जो है आपने इस बाउंड्री को एक्सटेंड कर दिया। तो व्हाट यू हैव डन हियर इज यू हैव गेन्ड अ पीएचडी एंड यू हैव क्रिएटेड अ न्यू नॉलेज। ओके, सो ऐसे करके करके सारे ब्रांचेस के लोग रिसर्च करते करते ये जो नॉलेज है उसको बढ़ा जाता है। तो वो सर्कल जो है वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है आपका सारे फील्ड में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ नॉलेज और या सर्कल ऑफ नॉलेज। एंड
what you have done is you have created a dent here. ये जो सर्कल है इसको थोड़ा सा इसको डिफॉर्म किया है, and this new thing that you have created is your thing, कि आपने इसको डिस्कवर किया है और ये आपकी चीज है, आपकी डिस्कवरी है, आपकी रिसर्च से ये जो सर्कल है इसको थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया है। तो पीएचडी यही होती है कि आप नए चीजों को डिस्कवर करते हैं। Now whether it is important or whether it is big is a different question, but आप every time you do this you create a small bit of new knowledge. So कैसे करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है? तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, तो वही है। तो आई विल जस्ट पुट इट इन अ मोर फॉर्मल वे। तो फर्स्ट है कि आपको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व कैसे करते हैं? तो सोचो कि ये जो लड़का है ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बटरफ्लाई जो है वो ये he has taken a bottle and there is this plant and there is a pupa and there is a butterfly that is coming out of it. So पहले क्या है कि आप देखते हैं कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे हुआ, लाइक क्या प्रोसेस क्या है, आपने क्या देखा इसको, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि ये कैसे हुआ। तो ये सेकेंड स्टेप में जो है आप सोचते हैं कि ये जो आपने ऑब्जर्व किया फिनोमेना कि बटरफ्लाई आ गया वो प्यूपा से, तो ये क्यों हुआ ऐसे, ओके। और आपको वो फ्रेम करना है कि क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल क्या है ना। तो बटरफ्लाई एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनता है, तो ये आपका क्वेश्चन आपने फॉर्म कर दिया। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाइपोथेसिस या प्रेडिक्ट करना है कि आप खुद ही एक गेस करते हो कि ये शायद बटरफ्लाई बनने के लिए पहले ये प्यूपा फॉर्म में आपको इसको थोड़ा देर रहना पड़ेगा और उसके बाद ये बटरफ्लाई बनता है। ये जो भी है प्रेडिक्शन आपका है, आप उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका रीजन ये है, पर आप श्योर नहीं है इस स्टेज पे कि इसका रीजन ये हो सकता है। तो ये प्रेडिक्ट करने के बाद आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में आपको पहले नोटिस करना है और आप लिख देते हो, एक रिकॉर्ड बना देते हो कि आज मैंने देखा कि ये प्यूपा है और ये प्यूपा ही रह गया, आज बटरफ्लाई नहीं बना। तो हर दिन सुबह को जाके आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। नहीं तो या एक प्लांट का ग्रोथ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप जाके मेजर करेंगे कि इसका हाइट कितना बड़ा है और मैंने इसको क्या पानी दिया, कितना पानी दिया है, एंड सो ऑन। सो यू जस्ट कीप रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस इन अ मोर फॉर्मल वे। एक बुक लेके आप अच्छे से इसको रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि एक दिन पानी नहीं दिया तो आर द लीव्स ड्रूपिंग। सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू एक्सपेरिमेंट विद द मटेरियल्स दैट यू हैव। ठीक है, ये ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है और ये आप करेंगे जैसे जैसे आप स्कूल, हाई स्कूल या प्लस 1 प्लस 2 में चले जाएंगे तो ये तो करेंगे ही, पर घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपने जो भी रिकॉर्ड किया है रिसर्च उसको एनालाइज करना है। तो शायद आप ये ऑलरेडी स्कूल में करते होंगे कि ग्राफ्स प्लॉट करके एनालाइज करते हैं कि कुछ चीजें चेंज होती है, तो इसका सोचो कि ये प्लांट है तो इसका हाइट ऊपर जाएगा, नहीं तो एक सेम रहेगा या ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। तो इस तरह के आप एक ग्राफ प्लॉट करके आप चेक कर सकते हैं कि विथ टाइम ये प्लांट का हाइट कितना बड़ा है, या कुछ और एक्सपेरिमेंट आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस ग्राफ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि चीजें होती क्या है ना। तो दिस इज द 5th स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज टू शेयर द रिजल्ट्स। तो ये जो है ये शायद आप घर में करेंगे तो आप जाके मम्मी पापा को बोलेंगे कि देखो मम्मी मैंने ये तो डिस्कवर कर दिया कि ये कैसे होता है। नहीं तो हमारे कम्युनिटी में हम जाके लोगों को बताएंगे कि आप एक टॉक देंगे, जैसे मैं आपको आज ये टॉक दे रही हूँ, जैसे वैसे ही मैं किसी साइंटिस्ट बाकी साइंटिस्ट को जाके मैं बताऊंगी कि मैंने ये डिस्कवर किया है, मैंने देखा है कि ये ऊपर जा रहा है। नहीं तो हम पब्लिश करेंगे, इधर यू टॉक और यू पब्लिश इन सम न्यूज़पेपर, नहीं ये जर्नल्स होते हैं, साइंस के लिए जर्नल्स होते हैं, तो वहां पे पब्लिश करते हैं। जो बाकी साइंटिस्ट उसको पढ़ के अपने ओपिनियन देते हैं कि ये सही है, सही तरीके से किया है कि नहीं। तो बेसिकली हम जो भी रिसर्च हम लैब में करते हैं हम बाकी लोगों से शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि साइंस तो अकेले तो नहीं कर सकते। आपने जो भी डिस्कवरी किया है बाकी लोगों को यूज में आना है और उससे टेक्नोलॉजी भी बन सकती है। तो ये शेयर जो करना है, रिसर्च को शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
उससे आप नॉलेज को बांट रहे हैं, बाकी लोगों से बांट रहे हैं, और उससे एवरीथिंग विल गेट बेटर एंड बेटर इन द वर्ल्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर रिजल्ट्स आर शेयर्ड एंड द रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूस्ड. यहाँ पे लिखा है स्टेप 7 में रिप्रोड्यूस करते हैं. तो सोचो कि आपने अपनी फ्रेंड को बता दिया कि मैंने ये देखा है, तो अभी फ्रेंड भी वही देखना चाहती है या चाहता है, तो दैट पर्सन विल ऑल्सो गो एंड ट्राई आउट. सो इफ योर रिजल्ट इज करेक्ट, तो बाकी लोग अगर उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे साइंटिस्ट काम करते रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है और आपने जो कंक्लूजन डाला है वो सही है, तो आपको ये कंसोलेशन या प्रूफ मिलेगी कि आपने जो डिस्कवर किया है वो एक सॉलिड फिनोमिना है और बाकी लोग उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये हो गया 7 steps that give you the scientific approach. So this is regularly used in all our labs. We also follow the same thing, and only difference is the problems that we work on may be a little more complex, क्योंकि हमने specialize कर दिया और इतने complex problems को हम solve कर रहे हैं. So, but the approach is the same, and as students or as kids, you can also try out the same approach. Okay. Now, what are the branches of science, or as a scientist, what can you work on? तो ये जो है, ये एक tree of science represent करते हैं. आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस है, आपके दिलचस्पी के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं. सो जब आप स्पेशलाइज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, तो आप इसमें से किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं. यहाँ पे मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ओल्ड थिंग्स, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, astronomy, and so on. So a lot of biology, geography, geology. So there's a lot of branches. There are a lot of branches that you can pick depending on your interest. So ये हो गया, आपको मैंने अभी तक साइंटिस्ट के लाइफ में क्या होते हैं और कैसे साइंटिस्ट बनते हैं, क्या अप्रोच लेते हैं, ये सब बताया. तो मैं अभी आपको मेरी पर्सनल जर्नी शेयर करती हूँ आपके साथ. तो आई कम फ्रॉम केरला, जैसे लीला ने बताया, दैट इज द सदर्न मोस्ट स्टेट. सो पीपल हु आर नॉट, स्टूडेंट्स हु आर नॉट फेमिलियर, दिस इज वेयर केरला इज फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया, एंड आई कम फ्रॉम दिस प्लेस. सो इट्स लाइक द टिप ऑफ केरला, राइट, एट दिस फ्रॉम दिस प्लेस इन कॉल्ड त्रिवेंद्रम. तो यहाँ पे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो आपको साइंटिस्ट बनने के लिए इंस्पिरेशंस चाहिए होती है. तो दैट टाइम, अभी तो इंटरनेट है, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज अवेलेबल, आपको बहुत सारी चीजें पता है, पर मेरे टाइम पे इंटरनेट तो था नहीं. तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहा है, ये दूरदर्शन का एक प्रोग्राम था उस टाइम पे, सुरभि. तो इसमें बहुत सारे साइंटिफिक कंटेंट डिस्कस करते थे, मुझे बहुत पसंद था ये प्रोग्राम. सो इसमें साइंटिस्ट आते भी थे, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इट. सो दिस वाज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी कि आई वांट टू डू साइंस. सेकेंड था कि मुझे एस्ट्रोनॉमी से बहुत फैसिनेशन था, क्योंकि जहाँ पे भी उस टाइम पे बुक्स में या न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट एस्ट्रोनॉमी, जैसे स्टार को देख सकते हैं, सन को देख सकते हैं. तो इससे मुझे बहुत फैसिनेशन थी. और उस टाइम पे कल्पना चावला शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस. सो that also happened, and this was also very inspirational. Later she passed away, unfortunately, but so these three things I would say that they were inspirations for me to be a scientist. तो उसके बाद there was this question कि इंजीनियरिंग करनी है या मेडिसिन लेना है, और ये तो सवाल सबके मन में होता है. तो आई डिसाइडेड दैट आई डू फिजिक्स. तो ये बहुत ही डिफरेंट डिसीजन था मेरे पेरेंट्स के लिए भी कि इसको इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, मेडिकल भी नहीं करनी है, पर फिजिक्स पढ़नी है. तो बट दे वर वेरी सपोर्टिव. तो मैंने फिजिक्स ले ली अपने इसके लिए. और बाद में मेन बहुत सारे जगह पे मैंने पढ़ाई की है, पर मेन है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. ये हमारी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ही मैं अभी काम भी करती हूँ. और कैलटेक, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों ही आप देख सकते हैं पुराने इंस्टीट्यूशन है, 100 साल से ज्यादा पुराने इंस्टीट्यूशन है दोनों ही. और बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि इस तरह के जगह पे जा पाई. तो ये अभी लास्ट ईयर के रैंकिंग्स हैं, और आप देख सकते हैं कि IISc इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है, और कैलटेक जो है वो भी वर्ल्ड के 6th पोजीशन पे, 6th या 7th पोजीशन पे आते हैं. तो दोनों ही बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड में, और बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशंस है. तो यहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च की है और पढ़ाई भी की है. तो I told you that I wanted to be an astronomer. तो एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, टेलीस्कोप से स्टार या सन देखते हैं. तो साइंटिस्ट की और एक
ये है कि चीजें चेंज हो जाती है, अपनी इंटरेस्ट भी चेंज जाती है। तो पहले मुझे एस्ट्रोनॉमी करना था, पर बाद में मैंने नैनो टेक्नोलॉजी की। तो अभी मैं लैब में छोटे चीजों को देखती हूँ, नॉट लार्ज बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, नॉट स्टार्स, बट आई वेंट इनटू द ऑपोजिट एक्सट्रीम। आई डू नैनो साइंस। सो बहुत छोटे चीजों को मैं स्टडी करती हूँ। छोटे से क्या मतलब है, यहाँ ये तो मेरी फोटो है कुछ साल पहले की, लैब में हम काम करते हुए। तो दिस इज एट कैलटेक, सो दिस इज व्हाट वी डू इन द लैब। सो वी हैव अ लैब एंड सम इक्विपमेंट्स हियर। सो बताती हूँ कि व्हाट डू आई वर्क ऑन एंड व्हाट डज माय लैब डू। सो दिस इज इंस्पायर्ड बाय दिस साइंटिस्ट, आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, पर ये दिस इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, रिचर्ड फेनमैन। तो इन्होंने 1959 में, बहुत साल पहले बताया था कि हम क्यों नहीं हम इसको एटम्स के स्केल में या सबसे छोटे स्केल में चीजों को मैनिपुलेट करके नए मटेरियल्स क्यों नहीं बनाते। तो इन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। देखो ये जो मैं बता रही हूँ, ये दिस इज लाइक इमेजिनेशन, राइट। इन्होंने इमेजिन किया था कि हम जो नॉर्मल बुक्स है, ब्रिटानिका का एनसाइक्लोपीडिया, जो बहुत ही बड़ी बड़ी बुक्स है, तो उसको क्यों नहीं हम एक छोटे से पिन के ऊपर राइट कर पाए। Why can't we do that, right? Why do you need this large books? Why can't you write it in a small head of a pin? Is that possible? कि हम ये सारे इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके एक छोटे से फॉर्म में रख दे, एक पिन में, तो आपको ये बुक्स कैरी नहीं करनी पड़ेगी, आप ये पिन ले जा सकते हैं। उस तरह का आइडिया था उनका। और उन्होंने ये भी सोचा कि कंप्यूटर जो सर्किटरी है उसको हम छोटा बना दे तो और ज्यादा इंक्लूड कर सकते। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि कंप्यूटर जो था उस जमाने का, वो अभी कितना छोटा हो गया है। तो ये ऑलरेडी वी हैव अचीव दिस, कि हमने उस कंप्यूटर को कंडेंस करके एक छोटे मोबाइल फोन के फॉर्म में वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को कंडेंस कर दिया है। और एक चीज था कि माइक्रोस्कोप, पहले तो एक माइक्रोस्कोप जो होती है वो आप एटॉमिक स्केल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, एटम को नहीं देख सकते आप बड़े बड़े चीजों को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बड़े बड़े मीनिंग माइक्रो स्केल में देख सकते हैं, पर उससे भी छोटे एटॉमिक स्केल में नहीं देख सकते। तो व्हाई कांट वी हैव अ माइक्रोस्कोप टू सी सच ऑब्जेक्ट्स और एनी काइंड ऑफ नैनो स्केल मशीन्स। सो आप जो मशीन्स नॉर्मली सोचते हैं वो बड़े मशीन्स होते हैं, छोटे छोटे मशीन्स क्यों नहीं बनाते। और अनदर चीज इन्होंने जो बताया वो ये है कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, आपको अगर कुछ ब्लड टेस्ट करना है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ब्लड लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट, आपको अगर अपनी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर सोचो कि आपने एक टैबलेट स्वॉलो कर दिया, वो टैबलेट जाके ढूंढ रही है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो टैबलेट ढूंढ के आपको बताएगा कि आपके ब्लड में ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं यूज कर सकते। ये बहुत ही इमेजिनेटिव आइडियाज इन्होंने दिए थे कि आवर टेक्नोलॉजी शुड ट्राई टू डेवलप दीज थिंग्स। तो आंसर टू दिस वाज द नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये यहाँ पे एक स्केल दिया गया है। आई थिंक दिस इज ओनली कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड दैट आई हैव। सो जो नॉर्मल चीजें आप देखते हैं वो मिलीमीटर स्केल में होता है, मिलीमीटर, ठीक है। आपके जो डिस्टेंसेस, कार के जो डिस्टेंसेस है वो किलोमीटर होता है, मिलीमीटर मतलब स्केल के जो सबसे छोटी छोटी जो लाइंस होती है वो मिलीमीटर होता है। और ये 10 मिलीमीटर यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिलीमीटर में ये सब आपको मिलेगा। वायरस का जो साइज है, नहीं, बाल का जो साइज है वो माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर मतलब उससे भी 1000 टाइम्स छोटी, ठीक है। माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, 60 to 120 माइक्रोमीटर होती है आपके बाल। और जो चीजें हम काम करते हैं उसका साइज होता है 1 to 10 नैनोमीटर, इस रेंज में हम काम करते हैं, ठीक है। एक गोल्ड का जो एक एटम होगा उसका साइज होगा 135 पिकोमीटर, ओके, और 0.1 नैनोमीटर। सो बहुत छोटे छोटे चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। आपके जो डीएनए होते हैं वो भी 2 नैनोमीटर का होता है, और ये जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होता है, वो भी माइक्रोमीटर का होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो भी है ये बड़े बड़े चीजें हैं, और इस तरह बॉटम के एरिया में छोटे चीजों को हम स्टडी करते हैं अपने लैब में। तो इसका रेलेवेंस क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं, इससे हम पोर्टेबल बना सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आजकल की जो आपकी जो डिस्प्ले है उसको हम फ्लेक्स नहीं कर सकते, है ना। तो आपको अगर सोचो कि आपके हाथ में एक मेरा भी अभी वॉच है, वॉच के ऊपर आपको अगर फ्लेक्स करके डाल सकते तो आप एक बैंड की तरह पहन सकते हैं जो फ्लेक्सिबल होता है। तो उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बना नहीं है, तो वो बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है। क्वांटम कंप्यूटर्स एक नया चीज है जो आपके काम आ सकता है। ये सब एनर्जी डिवाइसेस में और मेडिसिन में भी काम आ सकता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है ये टेक्नोलॉजी का। तो मैं जिस चीज में काम करती हूँ वो बहुत ही सिंपल है, तो आपको मैं बता सकती हूँ कि किस चीज पे काम करते हैं। पेंसिल तो आपने देखा होगा, ये तो एक पेंसिल है।
सोचो कि आप पेंसिल से लिख रहे हैं, तो आप पेपर में जब पेंसिल से लिख रहे हैं तो आपके पेंसिल में ग्राफाइट है, ग्राफाइट से बना हुआ है पेंसिल। तो आप जब पेपर में लिख रहे हैं तो आप बहुत सारे ग्राफाइट लेयर्स पेपर के ऊपर चिपक जाते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं पेंसिल से। तो ये जो ग्राफाइट लेयर जो होता है वो ऐसे लेयर लेयर टाइप के कार्बन आइटम से, कार्बन से बना हुआ है। और ये सोचो, मान लो कि एक पेपर ऑफ कार्बन आइटम से, एक पेपर, एक शीट ऑफ कार्बन आइटम है, उसके नीचे और एक शीट है, उसके नीचे और एक शीट है। और जब आप लिखते हो, आप कुछ सोचो कि 10 शीट छोड़ दिया आपने पेपर पे। हम जो करते हैं, हम उसके एक शीट के ऊपर काम करते हैं। तो दिस इज अ शीट ऑफ कार्बन आइटम्स, एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो बहुत छोटी है, एक एटम का साइज हमने देखा कि वो नैनोमीटर स्केल में आता है, लेस देन नैनोमीटर स्केल में आता है। तो उस तरह के छोटा सा एक लेयर होता है ग्राफीन। अब नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग इज दिस मटेरियल इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आप एक शीट ऑफ एटम्स को ऐसे चॉप करके ले जा सकते हैं। जैसे आपने एक एप्पल का लेयर काट लिया, वैसे आप इस ग्राफाइट के लेयर से एक चीज काट के एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन बना सकते हैं, और उसको ग्राफीन बोला गया है। वो ऐसा होता है, ये एक अनदर कार्टून है, ये ग्राफीन का शीट है, और हम इसको एक सिंगल लेयर इससे निकाल के काम कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे, इससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं, और मेरे लैब में हम इसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि इस तरह के काम करने के लिए 2 तरीके हम यूज कर सकते हैं। सोचो कि एक पत्थर ले लिया, और पत्थर को हमने उसका फॉर्म देके हम ऐसे करके एक स्टैचू बना दिया। तो वो भी कर सकते हैं कि हम पत्थर को चॉप चॉप करके जो हमको चाहिए वो बना सकते हैं। ये जैसे कि ये ग्राफाइट को हमने लिया और उसको एक छोटे छोटे लेयर में हमने काट काट के अपना डिवाइसेस बना दिया। तो इसका वो प्रोसेस जो है, मैं ये वाला स्लाइड स्किप करती हूँ टाइम के वजह से, ये भी स्किप करती हूँ। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो उसके ये सब बनाने के बाद हम ये स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मटेरियल में, ये कैसे आपस में बात करते हैं। तो क्या होता है, जब ये मटेरियल्स नैनो मटेरियल्स हो जाते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के यहाँ से कुछ मूव कर रहे हैं, तो बाहर बहुत दूर भी ये इलेक्ट्रॉन सेंस कर सकता है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में बात करते हैं, और हम ये स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में बात करते हैं तो ये मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होता है। सो इन सिंपल टर्म्स, हाउ डू दीज इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट, वही हम स्टडी करते हैं। ओके, so I think I'm almost, I mean, the time is almost up, right, Leela? Yeah. But you can Okay. take, another 10 more minutes. Okay, fine. So I will tell you about one more last scientific thing कि हम क्या करते हैं. This is very interesting, so I'll just stick to this. So सोचो कि यहाँ पे एक हिल है, this is a mountain, okay? और आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको इस तरफ जाना है, ठीक है। आपको मैं बोल रही हूँ क्लासिकल ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं आप क्लासिकल ऑब्जेक्ट बताते हैं। तो ये जो ये आप है, या सोचो कि एक बॉल है जो भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप कैसे जाएंगे, ऊपर से चलेंगे, राइट। सो नॉर्मली जो भी हम चीजें देखते हैं वो ऐसे ही होता है, आपको यहाँ से इधर जाने के लिए आपको हिल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स एक क्वांटम ऑब्जेक्ट है, इसको क्वांटम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आपको क्वांटम क्या है शायद कुछ दिन बाद पता चलेगा, पर फॉर नाउ इलेक्ट्रॉन्स आपकी तरह या बॉल की तरह नहीं बिहेव करते। इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ से यहाँ जाना होगा तो वो टनल करके जा सकते, इस तरह जा सकते। तो इस फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं एक्चुअली लैब में, कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक एक हिल जैसे अगर आपने कुछ बना दिया तो वो टनल कैसे करते हैं। और इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कुछ एग्जांपल्स में देती हूँ कि टनलिंग, ये क्वांटम टनलिंग जो फिनोमेना है, वो सन के अंदर होता है। ये सन जो है उसके अंदर ये फिनोमेना बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। आपने ये चीज तो देखा होगा, दिस इज अ थंब ड्राइव। इससे आप कंप्यूटर से कुछ सामान ट्रांसफर करना होगा तो ये चीज यूज करते हैं। इसमें भी ये क्वांटम टनलिंग का फिनोमेना बहुत यूज हुआ है। फिर कुछ एटम्स के ऊपर भी कुछ अगर आपको कुछ एटम्स का इंटरेक्शन स्टडी करना होगा तो भी आप यूज करते हैं। ये सारी चीजें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सामान है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स के ऊपर लाइट गिर रही है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे भी क्वांटम टनलिंग का बहुत यूज होता है। तो जो फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ये हिल को कैसे क्रॉस कर रहे हैं, इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है।
तो इससे सिंपल टर्म्स में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत हाई एंड फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। पर पॉइंट ये है कि ये जो बहुत ही हाई एंड फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग चीजों पे चलती है। जैसे ये सन में भी होता है और लीव्स में भी होता है। तो ये अगर हम लैब में स्टडी करेंगे तो हमको इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो मेरे लैब में हम यही सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो ये है मेरे लैब। तो आप देख सकते हैं कि ये फिजिक्स लैब है, तो इसलिए आपको कुछ टेस्ट ट्यूब या कुछ ग्लासेस ये सब नहीं है, पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। और मेनली हम क्रायोजेनिक्स और मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करते हैं। क्रायोजेनिक लिक्विड क्या होती है? क्रायोजेनिक लिक्विड बहुत ठंडी करती है चीजों को, ठीक है। तो आपका हमारे जो लिक्विड है ये -272 डिग्रीज तक जा सकती है। ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है जो जा सकते हैं हम वर्ल्ड में। ये इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, उसके आसपास है ये टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर है, बहुत कम, -272 डिग्रीज। तो इसको इस तरह के टेम्परेचर्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं। और ऑल्सो हम मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने बार मैग्नेट देखा होगा, जो भी मैग्नेट्स आप देखते हैं उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। उस मैग्नेट से 1000 टाइम्स लार्जर मैग्नेटिक फील्ड है। तो बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड्स में ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम स्टडी करते हैं। उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स है और हम स्टडी करते हैं। और ये मेरे लैब की ग्रुप है और यही लोग सारे काम करते हैं। ये तो सब लोग सेम टी शर्ट पहन के खड़े हैं, पर बहुत सारे टाइम पे ये लोग ऐसे करके पीपी किट पहन के भी खड़े होंगे। आपको ये सारी चीजें अभी पता होगा कोविड की वजह से, तो ये सब पहनना होता है क्योंकि हम क्लीन रखना चाहते हैं। जो भी डिवाइसेस हम बनाते हैं उसको हम क्लीन रखना चाहते हैं, तो ये ऐसे पूरा सूट पहन के, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के काम करना पड़ता है कभी कभी। और कभी कभी अगर आपने कुछ डिस्कवरी किया, जैसे ये लैब में मेरे लैब में एक डिस्कवरी हुआ था, तो ये हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे। तो ये 2 स्टूडेंट्स जो है उनको न्यूज़पेपर में भी आप आ सकते हैं। तो आप सेलिब्रिटी की तरह ऐसे साइंटिस्ट भी सेलिब्रिटीज बन सकते हैं, पेपर में फोटो आ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा था, एक न्यूज आर्टिकल आया था हिंदू में। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो मैं आपको एक लास्ट में कंक्लूड करते हुए एक स्टोरी बताती हूँ। इसको चाइनीज बैम्बू स्टोरी बोलते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। एज ए साइंटिस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो चाइनीज बैम्बू आप देख सकते हैं, एक तरह के बैम्बू है जो बहुत टॉल है। यहाँ पे लोगों को देखो कितने छोटे हैं, ये बहुत टॉल है। तो इसका ग्रोथ के पीछे एक कहानी है कि चाइनीज बैम्बू को बहुत नर्चरिंग होती है, पानी देना है, सॉइल अच्छा होना चाहिए, सनशाइन चाहिए। तो क्या होता है, अगर सोचो कि आपने एक सीड डाल दिया और आप ये सब कर रहे हैं, पूरे पानी दे रहे हैं सॉइल को, ये कर रहे हैं, पर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगी। आपका जो पौधा है वैसा ही रहेगा, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, मैं पानी डाल रही हूँ और सॉइल का भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, पर कोई ग्रोथ नहीं है, तो आप बहुत डिमोटिवेट हो सकते हैं, है ना। सो 3 to 4 years बहुत लॉन्ग टाइम है। 3 to 4 years तक आप ये करते रहेंगे, पर आपको देखने के लिए कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ये आपका पेशेंस का टेस्ट है कि आप कितने दिन तक ये केयरिंग प्लांट के लिए दे सकते हैं, पानी कितने दिन तक आप डाल सकते हैं विदाउट सीइंग एनी रिजल्ट, है ना। तो ऐसे ही होते हैं। तो फाइनली 5th ईयर पे जब आते हैं तो सडनली ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत अमेजिंग है कि ये 80 फीट टॉल हो जाता है 6 वीक्स के अंदर। तो आपने देखा ना कि ये हमारा जो हाइट होता है वो क्या होता है, 6 फीट मैक्सिमम। ये 6 फीट का एक आदमी खड़ा है और बैम्बू को देखो इतना हो जाता है। कितने टाइम में होता है? 6 वीक्स के अंदर ये इतना बड़ा हो जाता है। तो 5 साल तक आपने कोई ग्रोथ नहीं देखा और 6 वीक्स में ये इतना बड़ा हो गया। तो ये एक बहुत ही अजीब सी ग्रोथ कहानी है और यही होती है आपके भी लाइफ में, यही होगा अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो आप जब अभी स्कूल में हैं तो आप फाउंडेशंस बना रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ रिजल्ट तो नहीं मिलेगा कि आपने ये सारी चीज, आपको कभी लगता भी होगा कि मैं सब कुछ क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। तो मैं मैथ्स क्यों पढ़ाई करता हूँ, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फाउंडेशन सही सही बना रखें। जैसे कि बैम्बू का हमको देखने को कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, पर उसका रूट्स ग्रो हो रहा है। वो रूट्स ग्रो करके सडनली एक दिन आपको उसकी आउटकम मिलेगी, आपको उसका विजिबली आपको दिखेगा कि आपके जो भी हार्डवर्क रहा है ये रूट्स बनाने के लिए इतने सालों तक,
वो आपको सडनली आपका रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए आपको साइंटिस्ट बनने के लिए आपके फाउंडेशन सही करना है, आपको अपने बुक्स में जो भी दिया गया है उसको पढ़ना है, आपको बहुत हार्ड पढ़ना है, और आपको कुछ रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगी, बहुत साल बाद आप एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आप फ्यूचर में आप लोग भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। जो भी मैंने आपको टिप्स दिया है उसको प्लीज फॉलो कीजिए। ओके, आई थिंक दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू से। थैंक यू। Thanks a lot, Chandani, for a very insightful session. It was really wonderful. Okay, hi Leela. Yeah. So, you have any questions? Ayub School, KK Academy? प्रधान जी, आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है आपके बच्चों की तरफ से? आप म्यूट पे है प्रधान जी, आप म्यूट पे है। जी, सबसे पहले चांदनी मैम और सीएलई ट्रस्ट को हम लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में जब हम लोगों को यह कार्यक्रम बोला गया था कि आईआईएससी की मैम लेगी, तो हम लोगों ने सोचा छोटे बच्चे ये बात को कैसे समझेंगे, क्योंकि वो लोग डिफिकल्ट लेवल पे सोचते हैं और बच्चे लोग छोटे हैं। लेकिन आपने जिस आसान विधि से दिया और यहाँ बच्चे काफी उत्साहित है, तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि आपने दोनों लैंग्वेज को भी मिक्स किया, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी, और बच्चे इसको समझ पा रहे थे, तो काफी अच्छा लगा। और जिस ढंग से बताया, हमें नहीं लगता कि अब बच्चों के मन में कोई डाउट रह गया है कि वो भविष्य में बड़े होकर क्या बनेंगे, उनका किस तरह का तैयारी करना होगा, किस किस आसान से डिफिकल्ट की ओर स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, इसको आपने बखूबी से बताया। इसके लिए पुनः चांदनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बच्चों को कुछ पूछना है प्रधान जी? या KK Academy, anything from your side? Thank you for the wonderful way of explaining to young children how they should become a scientist. And secondly, they all are encouraged enough, and I hope they will definitely blossom into a good scientist in the future. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, so if there are no questions, that's fine. But if you need any help or suggestions, Leela has my email ID. Feel free to get in touch. Okay, I'll share your email ID with them if they have any questions. Yeah, I think Ayub. Chandni ma'am. Yeah. जब आप बताए कि जो ऑब्जर्व करने के लिए जो कुछ भी सामान सब जैसे प्रेशर कुकर कैसे उसका काम करता है, तो उस नजर से हम देखते नहीं थे कि ऐसे ऐसा काम करता है। जब आप बोले कि आप थोड़ा क्यूरियस ये ऐसा क्यों होता है, तो हमको और जानने को मिला कि अच्छा, अगर ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्यों बना है, जैसे पंखा में 3 ब्लेड्स रहते हैं, वो 3 ब्लेड्स ही क्यों, 4 ब्लेड्स या 5 ब्लेड क्यों नहीं हो सकते? तो मेरा मन में सवाल था, जैसा कुछ था। फिर आप बोले कि फ्रिज वाला एसी वाला, तो फ्रिज भी तो कूल करता है, तो फिर वो क्या नहीं कर सकता है? तो हम फिर सोचे कि हाँ, फिर आप वो कंप्यूटर जो दिखाए ना, वाला हम मन में सोच रहे थे कि ये कंप्यूटर हो सकता है। फिर हम माइक उस समय ऑन नहीं किए थे, बोलना भूल गए। हम बोलने वाले थे कि माइक ऑन था कि क्या कोई कंप्यूटर होगा, क्योंकि हम उस टाइप का सब जानते थे कि इस टाइप का पहले वायरिंग बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर होते, कंप्यूटर सब। तो अभी तो मेरा थोड़ा सा नजरिया देखने का बदला है, जैसा आप बताए मेरे को। और लास्ट का स्टोरी भी हमको बहुत अच्छा लगा, जो आप पेशेंस बताकर, पेशेंस करेंगे तो आपको लास्ट में आपका फल जो भी है आप मिल जाएगा। तो इसी तरह हमको तो बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। आपको बाद में भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो मेल कर दीजिए या फोन कर दीजिएगा, ठीक है? यस मैम। और मैम आपने या शुभम, आपने हम लोग को बहुत आसान ढंग से समझाया, आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने बीच बीच में इंग्लिश हिंदी का भी बताया।
Thank you, ma'am. Thank you, Shubham. Okay, then if there is no questions, then can we wind up? Okay, sure. Thank you, Leela, for this opportunity. Thank you. It Thank was you, good to meet Chandni, all the kids. Yeah, thank you. Chandni, for your time. Yeah, no issues. Yeah, Thank bye. you. Bye. Thank you for joining. Yeah, bye. Yeah. Bye.